ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ 5th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨਸ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.1 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ APV ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। AP ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਲੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲਿਖਾਂ 2 5 8 11 ਸੋ ਔਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ 5 ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਨ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2 ਤੇ 3 5, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 8 ਉਹ ਅਗਲੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਨ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 11 ਉਹ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਨ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਜੋੜ ਕੇ 14। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰ ਹੈ 3 ਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ 18 15 12 9 6 ਸੋ ਔਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਘਟੇ, ਫਿਰ 3 ਘਟੇ, ਫਿਰ 3 ਘਟੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ 3 ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ AP ਜਾਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 2 5 8 11 ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 15 12 9 6, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਲਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ AP ਦੇ ਪਦ। ਸੋ ਪਦ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮਸ ਆਫ ਐਨ AP। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਯਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਜਾਂ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A1 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ A2 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ A3 ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੂੰ A4 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਮ ਫਰਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਲ d ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ AP ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ AP ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ A1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪਦ A ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, A1 ਜਾਂ A ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਆਪਾਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਿਆ ਤੇ 3 ਹੈ ਆਪਣਾ D। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ A + D। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪਦ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ D ਜੋੜਾਂਗਾ। ਆਹੀ 3 ਜੋੜੂੰਗਾ ਯਾਨੀ D ਜੁੜੇ ਹੋਰ, A + D ਦੇ ਵਿੱਚ D ਹੋਰ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 2D यानी a प्लस 2d, क्योंकि a तो आएगा ही आएगा। फिर इस तो अगली टर्म इस तरह a प्लस 3d हो जाएगी, फिर अगली a प्लस 4d, सो ऑन इस तरह ये चलता जाएगा। इस दे बेस ते तुहानू क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। तुहानू कोई लड़ी दिती जा सकती है, उहदे बारे पूछा जा सकता है
कि पता करो कि वह दिती लड़ी AP है या नहीं। तो तुसी की करना है, तुसी देखना है हर बार जिहड़ा लगातार दो टर्म्स दे विच डिफरेंस है या अंतर है वो सेम आ रहा है। जेकर अंतर सेम आ रहा होया तो तुसी कहोगे कि दिती लड़ी AP है, यानी कि अंक गणितक लड़ी है दिती हुई लड़ी, अदरवाइज नहीं है। या फिर तुहानू किसी लड़ी का सांझा अंतर कढ़ना पूछा जा सकता है, उसकी फर्स्ट टर्म बारे पूछा जा सकता है। सो इस तरह के क्वेश्चन मिलणगे इस दे बेस ते तुहानू। सो इस इन्फॉर्मेशन तो बाद हुण आपां करांगे एक्सरसाइज 5.1 दे क्वेश्चंस नू। स्टूडेंट्स हुण आने एक्सरसाइज 5.1 ते अपने कोल है फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस AP इज फॉर्मड एंड वाई। हाँ जी, इन्हां दे विचों अपने कोल कुछ सिचुएशंस ने, इन्हां चों किहड़ी सिचुएशन च अंक गणितक लड़ी यानी कि AP बनती है, तो जिहदे विच बनती है उत्थे वो AP क्यों बनती पई है वो दसना आपां। पहला है अ टैक्सी फेयर, एक टैक्सी का किराया जिहड़ा है किसी जगह का वो है पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए। सो 15 तो शुरू होएगा यह फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ज्यों ज्यों किलोमीटर वधदे ने हर किलोमीटर के लिए 8 रुपए जुड़ी जाते हैं। सो पहले लिए 15, अगले लिए अपने को हो जाएंगे 15 ते 8 23, फिर हो जाएंगे 23 ते 8 31, फिर आ जाएंगे अपने को 39, इस तरह। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि हर बार जिहड़ा डिफरेंस है वो है 8 दा, इसलिए यह जिहड़ी लड़ी है यह अंक गणितक लड़ी है, यानी कि दिस इज एन AP। सो इहदा आएगा यस एन AP। हाँ, यह एक अंक गणितक लड़ी है। क्यों दे विच तुसीं लिख सकते हो क्योंकि हर बार जिहड़ा अंतर है वह बराबर है, यानी कि डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। सो इस तरह इसका आंसर आ गया अपने को यस। अगे आंदा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कोई सिलेंडर है वो हवा की मात्रा की गल हो रही है, वॉल्यूम की, तो वैक्यूम पंप के थ्रू वो हर बार ਉਹਦਾ चौथा हिस्सा हवा का निकाल दिता जाता है ताकि यह एक AP बनेगी। हाँ जी, जेकर आप स्टार्ट करिए वॉल्यूम V दे नाल कि सब तो पहला जी हवा है वह वॉल्यूम उसका आयतन है V, तो अगली बार कितना हो जाएगा ये इसका 1/4 घटा दिता जाएगा 1/4V, तो अपने को बन जाएगी इतों यह LCM लैके 4V माइनस 1V यानी कि 3/4V। तो अगली टर्म जी होएगी वो होएगी इस वॉल्यूम दे विचों इसी वॉल्यूम का घटाना है 1/4। हर बार जो वॉल्यूम है वो उसका ही 1/4 घटाना है। सो इतों देखते हैं की बनता है अपने को तीजी टर्म। हाँ जी, अपने को आ जाएगा 3/4V माइनस 3/16V। हाँ जी, इनू अगे सिंपलीफाई करते हैं तो अपने को मिलेगा 3/4 आप कॉमन कर सकते हैं तो V भी कॉमन कर सकते हैं तो अंदर आ जाएगा ये जगह तो 1 माइनस ये 3V तो नीचों 4 बाहर चला गया तो रह गया अपने को अंदर 1/4। तो इनू सिंपलीफाई करांगे 3/4 आ V आ रहा नाल इंटू 4 माइनस 1, 4 1 दा 4 माइनस 1 3/4। सो ये बन गया अपने को 3/4 दा स्केयर ते V। हाँ जी, हुण आपां देख सकते हैं अपने को जिहड़ियां टर्म्स बनियां ओह ने पहली बनी V, दूजी बनी 3/4V ते अगली बनी 3/4 स्केयर V। हुण जेकर इन्हां दा डिफरेंस हर बार सेम होया तो यह AP होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। इत्थे देखिए 3/4V दे विचों V नूं घटाइए तो हाँ जी, ये हो जाएगा एक तरह नाल V बाहर 3/4 माइनस 1। सो इनू सिंपलीफाई करते हैं अंदर आपां ये आ जाएगा 3/4/4 यानी कि -1/4V। हुण देखते हैं इहदा ते इहदा डिफरेंस यानी 9/16V माइनस आ हो गया 9/16V, ये चो इनू घटाने 3/4V नू। हाँ जी, 3/4V कर लेने आप कॉमन बाहर तो इतों की रह जाएगा अपने कोल 3/4 माइनस आ सारा चला गया बाहर तो इस जगह तो 1/1 ये आ जाएगा 3/4V। इत्थे LCM लवांगे इसे की तरह अपने कोल आ जाएगा इतों माइनस दा 1/4। सो नाल माइनस दा 1/4 ये बन जाएगा -3/16
16v। हाँ जी, पहला आ रहा सी -1/4v डिफरेंस, ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ डिफरेंस -3/16v। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅੰਤਰ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, डिफरेंस ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ AP ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ AP नहीं बनेगी। हाँ जी, अगे आने आप इस दे थर्ड पार्ट ते। कॉस्ट ऑफ डिगिंग वैल वैन इट कोस्ट 150 रुपीज़ फॉर फर्स्ट मीटर एंड हर बार वध जाती है 50 रुपए दे नाल। पहले 1 मीटर का खर्चा है खूह पुट्टण दा, वो है अपने कोल 150, फिर 50 नाल वधी जांदा है तां अपने कोल अगली बार 200, अगली बार 250 ते अगली बार 300, इस तरह यह चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पहला 200 चो 150 घटाइए तो 50 का डिफरेंस, फिर 50 का डिफरेंस, फिर अगे आन टर्म्स दे विच भी 50 का डिफरेंस, हर बार डिफरेंस सेम है तो यह एक AP है। यस, NAP। तो रीजन लिख देना क्योंकि हर बार अंतर समान है, यानी कि डिफरेंस इज सेम ईच टाइम। ओके, फोर्थ ते आने हुण आपां अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट, किसी खाते दे विच जिहड़ी राशि जिन्नी जमा है उसके बारे गल हो रही है। सो 10,000 दे नाल स्टार्ट हुई है, ये अपना P हो जाएगा। एंड उस तो बाद कंपाउंड इंटरस्ट लगता है, मिश्रित ब्याज जिन्हों बोलते हैं, तो हर बार कितना लगता है 8%। यह R की वैल्यू है, आपां नूं पता है कंपाउंड इंटरस्ट का जिहड़ा फॉर्मूला हुंदा है वो हुंदा है P ब्रैकेट च 1 + R/100 रेज़ टू पावर N। पहले साल लिए N 1 होएगा, दूजे साल लिए 2 हो जाएगा। P है अपना 10,000, सो सीरीज़ बनाने 1 + R अपने कोल है 8/100। पहले साल लिए इत्थे 1 होएगा, अगले साल लिए 10,000 1 + 8/100 दी पावर 2 हो जाएगा। अगले साल लिए यह 10,000 दे नाल 1 + 8/100 दी पावर 3 हो जाएगा। सोन चलता जाएगा। इनू सिंपलीफाई करके देखते हैं। 10,000 इंटू 108/100 तो इत्थे आ गया अपने कोल 10,000 नाल आ जाएगा 108/100 दा स्क्वेयर, फिर 10,000 ਇਹਦੇ ਨਾਲ 108/100 ਦਾ क्यूब सोन। हाँ जी, ये तो बड़ी अपने को सीरीज़ हुण आपां देखनी है AP हैगी है या नहीं। आपां की करांगे, पहलियां 2 टर्म्स का डिफरेंस लैने आ, इहदे विचों दूजी चों पहली नूं घटाने आ। हाँ जी, 10,000 उहदे नाल है 108/100 उहदा स्क्वेयर, उह चों घटाण लगे आ 10,000 108/100। हाँ जी, इन्हां दा डिफरेंस देखते हैं। 10,000 तो बाहर आ जाएगा अपने कोल, नाल 108/100 भी आ जाएगा बाहर, तो अंदर की बचे फिर अपने कोल इत्थों बचे 108/100 क्योंकि स्केयर चों आह एक बार चल गई, एक बच गई, आ तो सारी ही बाहर चल गई, इस जगह तो आ जाएगा -1। सो यह आ गया 10,000 108/100 नाल आ जाएगा सॉल्व करके, इत्थों LCM लैके 100 बन जाएगा। 108 - 100 यानी कि 8/100। सो इत्थों अपने को 0 0 0 0 4 zeros कैंसल हो जाएगी। अपने को आ जाएगा 8 8 64 6 80 फिर 6 फिर 8 864 आ गया अपने को पहलियां 2 टर्म्स का डिफरेंस। हुण तीजी चो दूजी नूं सबट्रैक्ट करके देखते हैं कि की आ रहा है। उस केस दे विच अपने को जदों इहदे चों इहनूं सबट्रैक्ट करांगे तो अपने को कॉमन हो जाएगा 10,000 ਉਹਦੇ ਨਾਲ 108/100 ਦਾ स्क्वेयर कॉमन हो जाएगा, तो अंदर की बचेगा 108/100 -1। सो 10,000 नाल 108/100 ਦਾ स्क्वेयर ਤੇ ਨਾਲ 8/100। हाँ जी, इस तो बाद ये हो जाएगा 10000 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 8/1 2 3 4 ਇਹਦੀਆਂ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ। सो 1 2 1 2 3 4 3 4 आ कैंसल हो गई। हाँ जी, इनू सिंपलीफाई करांगे तो ये जी वैल्यू आएगी इस तो डिफरेंट आएगी। तुसी सॉल्व करके देख सकते हो क्योंकि हर बार जड़ियाँ वैल्यूज़ ने यानी कि डिफरेंस सेम नहीं आया तो अपने को जी लड़ी है वो AP
नहीं होएगी, यानी कि वो अंक गणितक लड़ी नहीं होएगी। स्टूडेंट्स हुण आंदे आ सैकेंड क्वेश्चन ते। सैकेंड क्वेश्चन है अपने कोल राइट फस्ट 4 टर्म्स। पहलियां 4 टर्म्स लिखनियां ने, यानी कि पहले 4 पद लिखने ने जदों आपां नूं ए ते डी दिता होया है। हाँ जी, A1 हुंदा अपने कोल फस्ट टर्म, सोल्यूशन है अपना ये A1 तो A ही हुंदा है। सो फस्ट टर्म तो होगी 10 अपने कोल। सैकेंड टर्म A2 मिलता अपने कोल A1 दे विच D नूं जोड़ के। सो A1 आ चुका सी अपना 10, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ ਜਿਹੜਾ D है ਇਹਨੂੰ जोड़ देंगे 10 नूं तो मिल जाएगा आपां नूं 20। A3 ਦੀ ਗੱਲ करिए तो A2 है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ D जोड़ांगे आपां। सो 20 प्लस 10 करांगे तो उत्थों मिल जाएगा आपां नूं 30। ते A4 है ਜਿਹੜਾ ਉਹ पिछली टर्म A3 सी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ D जोड़ांगे, D यानी कि 10 जोड़ांगे तो आपां नूं मिल जाएगा 40। सो 10 20 30 40 ये आ गई अपनिया फस्ट 4 टर्म्स तो ये बन गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, नैक्सट दे विच अपने कोल A दिता होया -2 तो D दिता होया 0। सो इत्थों A1 है जिहड़ा वो तो A दे इक्वली यानी कि -2 आ जाएगा। A2 है जिहड़ा ओह A1 दे विच D जोड़े ते मिलता है। A1 है -2 तो D अपना है 0। सो -2 च 0 जोड़िया -2 ही मिल गया। A3 की गल करिए तो पिछली टर्म A2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ D जोड़ना ਹੁੰਦਾ है आपां। सो -2 सी पिछली टर्म ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 D की वैल्यू है जिहड़ी वो जोड़ी तो फिर -2 मिल गया। A4 यानी कि फोर्थ टर्म। हाँ जी, हुण इस दे विच यानी A3 दे विच D जोड़ांगे मीनस -2 च D यानी कि 0 जोड़िया तो -2 ही मिल गया। सो सारिया टर्म्स अपने कोल -2 ही आणगियां जदों साझा अंतर अपने कोल 0 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस 0 है तो सारिया टर्म्स सेम ही आणगियां। सो इन्हां चारां नूं तुसीं लिख सकदे हो इकट्ठियां करके -2 -2 -2 ते -2 ये बन जाणगियां 4 टर्म्स अपनियां पहलियां। ओके, थर्ड ते आइए। A दिता होया 4 ते D कॉमन डिफरेंस यानी कि -3 दिता होया है। सो A1 फस्ट टर्म यानी कि 4 होगी तो A2 निकालन दे लई आपां A1 दे विच जोड़ांगे D नूं ते A1 है 4 दे विच जोड़ांगे -3 नूं। 4 दे विच -3 जोड़ने यानी कि 4 -3 ते इत्थों मिल जाएगा आपां नूं 1। सो फस्ट यह बन गई अपनी सैकेंड टर्म। अगे आने A3 फाइंड आउट करन दे लई A2 सी जिहड़ी कि इस तो पिछली टर्म ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ D जोड़ांगे यानी कि पिछली टर्म सी अपने कोल 1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ D जोड़ांगे तो D है -3। सो ये बन जाएगा 1 -3 जो कि फर्दर सोल्व करके मिलेगा -2। फोर्थ टर्म यानी कि A3 दे विच हुण साझा अंतर पिछली टर्म च आपां साझा अंतर जोड़ते जाना है। सो A3 सी अपने कोल -2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ांगे -3। सो -2 -3 बन जाएगा ये प्लस माइनस करके। सो उत्थों ये -5 हो जाएंगे। सो टर्म्स आई अपने कोल 4 then 1 then -2 then -5 ये बन गया फस्ट 4 टर्म्स। then आंदे अपने कोल फोर्थ पार्ट। A1 तो यही आ जाएगा A1 इज 1 A2 इज A प्लस D यानी कि 1 प्लस हाफ तो 1 प्लस हाफ इत्थों आप LCM ले लीए तो ये नीचे 1 लैके 2 1s are 2 तो वो 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा अपने कोल 3/2। अगे A3 की गल करिए तो दैट वुड बी A2 प्लस D एंड A2 इज 3/2 एडिंग वैल्यू ऑफ D विच इज हाफ टू दैट अपने कोल LCM बन जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा 3 + 1 सो दैट वुड बी 4/2। आफ्टर कटिंग इट विल गिव अस 2। सो अपने कोल A3 आ गई 2। A4 यानी कि फोर्थ टर्म दैट वुड बी A3 प्लस वैल्यू ऑफ D। A3 नाउ इज 2 सो दैट 2 प्लस वैल्यू ऑफ D विच इज हाफ इन्हों जोड़ांगे इत्थे लवांगे LCM अपना ये बन जाएगा 2 2s are 4 प्लस 1 नीचे LCM जो 2 है वो आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 5/2। सो अपने को चारों टर्म्स आ गई। नाउ वी विल राइट देम कलेक्टिवली 1 then 3/2
then 2 and then lastly we have 5/2. So ये बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर. Now फिफ्थ पार्ट A1 आ जाएगा -1.25, A2 ਉਹ A1 ਚ D ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 1.25 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 0.25 ਐਂਡ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25. हाँ जी पॉइंट तो पिछे वाले पोर्शन ऐड होंगे तो बन जाएगा ये 50. सो अगे वाला -1.50 इत्थे ऐड करके भी देख लें आप 0.25 लाइक ने क्योंकि एच भी दो ने टर्म्स पॉइंट तो बाद क्योंकि एच भी दो डिजिट्स ने अपने को पॉइंट तो बाद. सो इन्होंने ऐड करिए तो इत्थे अपने को 5 आ जाएगा -1.50. सो ये बन गई अपने को A2 दैन A3 इज़ A2 प्लस D यानी कि -1.50 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ जोड़ने ने. हाँ जी अगे जाके इन्हें प्लस माइनस माइनस ही बन जाना है. सो इस तरह भी लिख सकते हैं आप डायरैक्टली एक स्टैप बचाने के लिए. सो ये बन जाएगा फर्दर -1.75. ओके नेक्स्ट A4 नाउ which is A3 plus D and A3 was -1.75. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ minus ਦੇ 0.25. so directly minus ਦੇ 0.25 we can write. so it will become -2.00 or you can write -2 only as well. so ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰੋਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ -1.25 next is -1.50 next is -1.75 and lastly we have -2.0 or -2 only. स्टूडेंट्स हुण आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ते राइट फर्स्ट टर्म यानी कि आपां A दी वैल्यू लिखनी आ एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि D जदों आपां नूं APs यानी कि अंक गणितक लड़ियां गिवन ने दित्तियां होईयां ने. वैरी ईजी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है तो यह तुहानूं छोटे क्वेश्चन दे विच मिलेगा. हाँ जी फर्स्ट टर्म अपने कोल इत्थे है 3 इस दे विच फर्स्ट टर्म जिन्हों आपां A नाल डिनोट करते हैं वो हो जाएगी 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू. हाँ जी इन्हां दे उपर आपां लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म नूं A1 A2 A3 A4. आपां A2 चों A1 नूं सबट्रैक्ट करके बाद वाली चों पहले वाली याद रखना है. बाद वाली A2 चों पहले वाली सबट्रैक्ट होनी है. A2 चों A1 होनी है. आपां A2 की वैल्यू भरते हैं इत्थे जो कि है 1 माइनस A1 की वैल्यू 3 सोल्व करके मिलेगा -2. सो A3 ते -2 ये बन जाएंगे अपने आंसर्स. नैक्सट आने अपने कोल हाँ जी A1 A2 A3 A4. ओके फर्स्ट टर्म यानी कि A आप डायरैक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हैं बिना फर्स्ट टर्म आ चीज़ ना भी लिखो A लिख दोगे तो भी अंडरस्टूड है कि पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म की ही गल हो रही है. सिंपली यू कैन राइट A. सो इत्थे अपने कोल A की वैल्यू -5 ते कॉमन डिफरेंस यानी कि D. ओके हाँ जी ये जरूरी नहीं कि तुसी A2 चो A1 नूं ही सबट्रैक्ट करना है हर बार हरेक क्वेश्चन लई D की वैल्यू निकालने लई. तुसी किसी भी जगह तो कोई भी दो कंजैक्टिव यानी कि लगातार टर्म्स दे विचों D की वैल्यू निकाल सकते हो. आपां इहदे विचों इहनूं घटा के भी निकाल सकते हैं D की वैल्यू. पर जेकर क्वेश्चन च किते आपां दो पॉजिटिव टर्म्स लभ लियां उन्हां दे विचों भी आपां D की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो इत्थे आपां D A4 - A3 करके भी निकाल सकते हैं. सो दैट इज 7 - 3 यानी कि 4. हाँ जी जेकर तुसी A2 - A1 करना हुंदा A2 - A1 D की वैल्यू दे लई उस केस च की होना सी -1 A2 की वैल्यू माइनस A1 की वैल्यू -5 फिर इन्हें बनना सी -1 आ माइनस प्लस होने सी 5 फिर मिलना सी 4. हाँ जी सो ये माइनस साइन की बड़ी अहमियत है नैगेटिव साइन की. जेकर किते नैगेटिव साइन तुसी गलत लगाता तो ये क्वेश्चन हो जाएगा रोंग. सो उस प्रॉब्लम नू ओवरकम करन दे लई तुसी डायरैक्टली जिथों ईजिली तुहाडे कोल D की वैल्यू निकल सकती है कॉमन डिफरेंस की उत्थों भी निकाल सकते हो. सो ये तां सी एक्स्ट्रा पार्ट.
अदरवाइज तुसी इहदे नाल आंसर लिया सकते हो। सो इत्थों बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगे आने थर्ड क्वेश्चन ते अपने कोल ए आ गई फर्स्ट टर्म यानी कि 1/3 ते कॉमन डिफरेंस डी। हाँ जी हुण कितों भी निकाल लो a1 a2 माइनस a1 कर लो। ओके दैट वुड बी 5/3 माइनस वैल्यू ऑफ a1 विच इज 1/3। 3 अपना बन जाएगा LCM एंड इन न्यूमरेटर 5 minus 1 so it would be 4/3। so this and this both are answers of this question। lastly we have this AP। हाँ जी a1 a2 a3 a4 फर्स्ट टर्म a आ गई 0.6 एंड d a2 minus a1 1.7 माइनस 0.6। ओके इन्होंने सबट्रैक्ट करोगे तो 7 चो 6 सबट्रैक्ट करके 1 पॉइंट थले 0.1 चो 0 सबट्रैक्ट करके 1 सो 1.1। सो दिस एंड दिस बोथ आर आंसर्स ऑफ दिस पार्ट। स्टूडेंट्स हुण आने क्वेश्चन नंबर 4 ते। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। कहता इन्हां चों किहड़ियां एपी ने यानी अंक गणितक लड़ियां ने ते जेकर इन्हां चों जिहड़ी लड़ी एपी हुई आपां नूं लभ गई ऐसी तां कॉमन डिफरेंस यानी कि डी लभो ते अगलियां 3 टर्म्स भी लिखो उस केस दे विच। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट दे नाल। हाँ जी इत्थे अपने कोल a1 a2 a3 a4। हाँ जी इत्थे निकालते हैं आपां d1 यानी कि पहला अंतर पहलियां 2 टर्म्स दे विच यानी कि a2 माइनस a1 यानी कि 4 माइनस 2 करके मिल गया 2। हुण आपां निकालते हैं d2 यानी अगलियां 2 टर्म्स दे विच डिफरेंस इन्हां च निकाल लिया। हुण इन्हां दी वारी है मीनस a3 माइनस a2 विच इज 8 माइनस 4 ते इत्थों मिलिया 4। हाँ जी आपां देख लिया कि पहलियां 2 टर्म्स दे विच जिहड़ा डिफरेंस आ रहा d1 ते d2 दीयां वैल्यूज सेम नहीं आ रही। इट मीनस यह AP नहीं हो सकती। सो यह AP नहीं है नॉट एन AP नॉट एन AP क्योंकि हर बार अंतर सेम होवे तां अपने कोल AP बनती हुंदी है। ओके दूजा लैंदे आ पार्ट उहदे विच हाँ जी a1 a2 a3 a4 एवें आपां लिख लेना है। पहला निकालते हैं d1 की वैल्यू 5/2 माइनस 2 तो इनू सिंपलीफाई करांगे तो ये बन जाएगा 5 माइनस 2 2s are 4 ओवर एदा LCM 2 सो दिस वुड बी 1/2। d2 की वैल्यू निकालते हैं d2 आएगा अपने को a3 चो a2 नू सबट्रैक्ट करके यानी 3 माइनस 5/2। याद रखना है बाद वाली चो पहले वाली घटानी है बाद वाली चो उस तो अगे वाली घटानी है अगे वाली चो पिछे वाली ना घटाई जाओ ध्यान रखियो। ओके इत्थे भी LCM लवांगे तो अपने को बनेगा 6 माइनस 5 1s are 5 नीचे 2 1s are 2 1/2। सो पहले 2 सेम आ गए तो आपां तीजा भी निकाल लेना है। जे पहले 2 ही डिफरेंट आ जाते पिछले क्वेश्चन की तरह आपां कह देंगे कि AP नहीं है। हाँ जी हुण निकालते हैं d3 ओके 7/2 माइनस हुण इस चों घटाना है 4 दे विचों घटाना है a3 नू 3 इहदे नीचे 1 लगा लांगे। ओके 7 1s are 7 माइनस 3 2s are 6 ओवर 2 1s are 2 अगेन 1/2। हर बार अंतर समान आ रहा है इसलिए यह AP है। यस एन AP यस एन AP हाँ AP है दित्ती अंक गणितक लड़ी। ओके हुण उन्हें क्या है कि D निकालो D तो आ ही गया साझा अंतर क्योंकि हर बार यही है। सो D आ गया अपना D आ गया हाफ। ओके हुण उन्हें क्या कि अगलियां 3 टर्म्स निकालो कितनियां हैगियां अपने कोल 4 तक हैगियां a5 निकालना है। a5 है जेड़ा ओहो a4 सी जेड़ा यानी कि 7/2 ओहदे विच d जोड़े ते मिल जाएगा आपां नूं। ओके LCM बन जाएगा 2 ऊपर 7 + 1 8/2। हाँ जी इहदी कटिंग करके मिल जाएगा 4। अगे a6 निकालते हैं a6 दे लई a5 जेड़ा 4 आ गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ यानी कि हाफ ऐड करांगे इथों LCM लवांगे तो बनेगा 8 + 1 ओवर 2 1s are 2 9/2। लास्टली a7 हाँ जी 9/2 पिछली टर्म यानी a6 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ d जोड़िया तो ये बन गया 10/2 कटिंग करके आ गया अपने को 5। सो नैक्सट 3 टर्म्स आ गई दीज 3 तो d की वैल्यू तो अपने को आही आ गई सी जिहड़ी हर बार सेम आ रहा सी अंतर। हाँ जी अगे आने आप थर्ड पार्ट ते इसदे
ओके ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ d1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿਸ ਇਜ਼ a1 a2 a3 ਐਂਡ a4 ਸੋ d1 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ a2 ਚੋਂ a1 ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ a2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3.2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ माइनस ਦਾ 1.2 ਆ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3.2 ਪਲੱਸ ਦਾ 1.2 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਅੱਗੇ d2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਹੋਏਗੀ a3 ਮਾਈਨਸ a2 ਨਾਓ a3 ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ 5.2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3.2 ਨੂੰ जो कि बन जाएगा माइनस का 5.2 आ माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 3.2 फिर तो अपने को माइनस 2 आ गया हाँ जी हुण d3 निकालते हैं जो कि होएगा a4 माइनस a3 यानी कि माइनस दे 7.2 उचों माइनस करांगे माइनस दे 5.2 नू हाँ जी ये बन जाएगा माइनस 7.2 ए माइनस माइनस प्लस 5.2 अगेन आ गया अपने को माइनस दे 2 हर बार आप देख रहे हैं कि माइनस 2 आ रहा है अंतर तो यह अपने को जी लड़ी है यह AP होएगी यस एन AP हाँ यह लड़ी AP है हुण एक तो D निकालना सी D तो आही आ गया अपना सो D अपने को आ चुका है माइनस 2 इस केस दे विच अगली टर्म निकालनी है आपां 4 टर्म्स आपां नूं दित्तियां होईयां सी अगलियां 3 निकालनी है A5 दी वैल्यू निकालनी है A4 सी अपने को आहा माइनस 7.2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2 यानी कि d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋ ਮਾਈਨਸ 7.2 ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 2 ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 9.2 ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a6 6th ਟਰਮ यानी वो पिछली जी टर्म निकली है माइनस ਦੇ 9.2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ यानी कि d ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ so minus the 9.2 a plus minus minus 2 that would be minus 11.2 lastly a7 यानी कि a6 च हुण जोड़न जा रहे हैं आपां d a6 आया माइनस 11.2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ d जोड़ना जो कि माइनस च है सो इस तरह ही बन जाएगा माइनस दे 13.2 सो आ वाली ते आ वाली ये हो गई नेक्स्ट 3 टर्म्स ते आ गई सी अपने कोल d दी वैल्यू आने फोर्थ पार्ट दे विच अपने कोल d1 यानी कि पहला डिफरेंस a1 a2 a3 a4 इस तरह लिख लिया a2 चो a1 नू सबट्रैक्ट करांगे तो अपने को आएगा माइनस 6 माइनस माइनस 10 जो कि आ जाएगा माइनस 6 प्लस 10 यानी कि आ गया 4 d2 दी वैल्यू निकालते हैं d2 आएगा a3 माइनस a2 ओके माइनस दे 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 6 ਨੂੰ ਆ ਬਣ ਗਏ ਪਲੱਸ ਦੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਪਲੱਸ 6 ਅਗੇਨ 4 ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ d3 ਆਪਣਾ a4 ਮਾਈਨਸ a3 2 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 2 ਪਲੱਸ 2 ਅਗੇਨ 4 ਹਰ ਵਾਰ ਅੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੇਮ ਸੋ ਇਹ AP है सो दिस इज एन AP एंड D आ गया अपने कोल 4 हुण अगलियां 3 टर्म्स लिखनियां ने आपां यानी कि A5 A6 ते A7 A5 आ जाएगा अपने कोल A4 दे विच D जोड़ांगे आपां A4 है अपना 2 D जोड़िया 4 बन गया ये 6 A6 A5 सी जिहड़ा यानी कि 6 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ D जोड़िया ਇਹ A5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ बन गया 10 ਤੇ A7 है ਜਿਹੜਾ ਉਹ A6 ਦੇ ਵਿੱਚ D ਜੋੜੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੈਕਸਟ 3 ਟਰਮਸ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 5th ਪਾਰਟ ਤੇ A1 A2 A3 A4 D1 ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ A2 ਚੋਂ A1 ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ 3 प्लस √2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ 3 ਨੂੰ हाँ जी 3 नाल 3 कट्टिया जाएगा अपन मिलेगा √2 d2 की वैल्यू निकालते हैं यानी कि दूजा अंतर अगलियां 2 टर्म्स दे विच a3 माइनस a2 जो कि है 3 प्लस 2 √2 माइनस हाँ जी इनू सबट्रैक्ट करना है आपां 3 प्लस √2 नू
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 + 2√2। ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, -3 -√2। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਟਵਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2√2 ਇਹ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਰੂਟ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 1√2 ਹੈ। 2√2 1√2, 2 ਚੋਂ 1 ਘਟਿਆ ਤਾਂ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ √2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ √2। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ √2 ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ √2 ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ √2 ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। A4 - A3 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, D3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ A4 - A3, 3 + 3√2 ਉਹ ਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, -2√2 ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਆਹ 3 ਤੇ -3 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 3√2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2√2 ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ √2। ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √2 ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ AP ਹੈ। ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ AP ਐਂਡ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √2 ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ यानी कि। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 3 ਟਰਮਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, 4 ਤੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ D ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਸੀ 3 + 3√2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ D यानी कि √2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ D यानी कि √2 ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3 + 4√2। ਅੱਗੇ A6 ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 + 5√2। A7 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 + 5√2 ਦੇ ਵਿੱਚ √2 ਐਡ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 + 6√2 A7 ਦੀ, यानी कि ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਟਰਮ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ 6th ਪਾਰਟ ਤੇ। A1 A2 A3 A4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, D1 ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, A2 - A1 ਕਰਕੇ 0.22 - 0.2। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ। 0.22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 0.2 ਨੂੰ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਲਵ यानी कि ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 0 ਲਗਾ ਕੇ। ਇਸ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ 0 ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅੰਕ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅੰਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਚੋਂ 0 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ 2 ਚੋਂ 2 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ 0, ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਚੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.02। ਹੁਣ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ D2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਕਿ A3 - A2 ਕਰੇ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। A3 ਹੈ 0.222, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ 0.22। ਹਾਂਜੀ, 0.222 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.22 ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 0 ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 0 0 ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੇ 0। ਸੋ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 0.002। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.2 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.02 ਸੀ। ਸੋ these are not same, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ AP ਨਹੀਂ ਹੈ, not an AP। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 7th ਪਾਰਟ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ A1 A2 A3 A4 D1। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾ, -4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ -4। D2 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗਾ, -8 - -4। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, -8 + 4। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, 4 ਮਿਲਣਗੇ, ਵੱਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਸੇਮ ਆ ਗਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। D3 ਦੀ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, -12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -8 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, -12 + 8 ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -4। ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੇਮ, ਸੋ AP ਹੈ। ਸੋ ਯੈਸ AP, ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ AP। ਐਂਡ D यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया अपने को -4। ਹੁਣ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ 3 ਟਰਮਸ।
चार दित्तियां हुई ने, पंजवीं निकालांगे A5 आ जाएगा A4 प्लस D, यानी कि A4 सी अपने कोल -12, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ जो कि प्लस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ जो कि है -4 ਉਹ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -12 -4, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा -16। ओके, A6 ਦੇ ਲਈ A5 ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ -16, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -16 -4 ਕਰਕੇ -20 ਐਂਡ 7th ਟਰਮ पिछली टर्म -20 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ -20 -4 -24। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਨਸਰ ਤੇ ਨਾਲ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਏ ਟੋਟਲ ਆਨਸਰਸ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। 8th ਪਾਰਟ ਤੇ ਆਨੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਟਰਮ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ D1 -1/2 ਚੋਂ ਆ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1/2 ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1/2 माइनस प्लस 1/2। हाँ जी, ये कट्टे गए तो मिलिया 0। इसी तरह D2 भी आ जाएगा 0 तो D3 भी आएगा अपने को 0। तो हर बार डिफरेंस है सेम तो यह AP है। सो यस एन AP ते क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो इस AP ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ -1/2 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੈਕਸਟ 3 ਟਰਮਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ -1/2। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਪਲੀਟ। 9th ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, A1 A2 A3 A4 D1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3 - 1। ਓਕੇ, दैट इज 2। D2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲੀਏ ਤਾਂ 9 - 3। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 9 - 3 मिल गया 6। डिफरेंस इज नॉट सेम, पहले दो D दियां वैल्यू सेम नहीं आईयां। सो नॉट एन AP, नॉट एन AP यानी कि यह AP नहीं है। अगे आने 10th क्वेश्चन ते A2 A3 A4 A सो ऑन। हाँ जी, D1 की वैल्यू निकालते हैं। ओके, 2A चों A नूं सबट्रैक्ट करांगे 2A - A। वैसे तुहानूं पता लग ही गया होना कि हर बार अंतर सेम होने जा रहा है। D2 3A - 2A ये भी A। D3 4A - 3A ये भी A। हाँ जी, देख के ही पता चलता पाया सी कि हर बार A वध रहा, इट मीनस DA होएगा तो यह एक AP है अपने कोल। यस एन AP। ओके, तो अगलियां टर्म्स जड़ियां लिखनियां ने ओह 5th टर्म है जी A5, ये 4A सी तो हो जाएगी 5A। A6 जी है ये A जोड़ांगे तो 6A तो A7 हो जाएगी अपने को 7A। सो ये 3 तो D की वैल्यू आ गई अपने को A। ये अपना बन गया इसका आंसर। नैक्सट 11th ते आने हुण आपां। ओके, D1 निकालते हैं आपां A² चों A नूं सबट्रैक्ट करांगे, ये बन गया A कॉमन कर लिए तो A - 1 क्योंकि इत्थे A है A × A, A है A × 1, इन्हां चों A कॉमन किया तो A - 1 आ गया। D2 निकालिए हुण इहदे विचों इहनूं सबट्रैक्ट करना है, पहलां इह चों इहनूं कीता सी, हुण इह चों A³ चों A² कॉमन करिए, A³ चों A³ चों A² सबट्रैक्ट करिए तो इत्थे अपने कोल इहनूं लिखिया जा सकदा है A² × A। दोनों च A² हो जाएगा कॉमन, इत्थे A² × 1 समझ सकते हो। A² बाहर चला गया तो अंदर रह गया A - 1। हाँ जी, आप देख सकते हैं ए च बाहर सी ए च है बाहर A²। सो ये सेम किवें हो सकदियां ने? सो सेम नहीं ने, इसलिए नॉट एन AP, नॉट एन AP यानी कि यह AP नहीं है। स्टूडेंट्स हुण आने इस दे 12th पार्ट ते अपने को स्टेटमेंट है। हाँ जी, पहला इनू सिंपल फॉर्म च लिखांगे √2, √8। √8 हुंदा है अपने कोल √2 × 2 × 2। हाँ जी, आपां वर्गमूल करते हैं यानी स्केयर रूट तो पेयर चों एक संख्या हुंदी है बाहर तो यह बन जाएगा 2√2। अगे है √18। √18 नूं की लिख सकते हैं आपां, ये बनता है 3 × 3 × 2 करे ते यानी कि चों 3 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 3√2। सो इत्थे आ जाएगा 3√2। अगे जिहड़ा 32 है उन्होंने लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 5 बार 2 नूं मल्टीप्लाई करे तो 1 2 ते 1 2। सो 2 × 2 बाहर 1 2 अंदर, ये बन गया 4√2। सो इत्थे आ जाएगा अपने कोल 4√2।
सो हुण इस तो बाद इनू आपां A1 A2 A3 A4 लिख लैंदे आ। हाँ जी, D1 की वैल्यू निकालते हैं A2 माइनस A1 यानी कि 2√2 माइनस √2 तो आ कल्ले √2 नू 1√2 समझना है तो 2√2 दे विचों 1√2 निकल गया तो कल्ला √2 रह गया यानी कि 1√2 सिंपल। D2 की वैल्यू A3 चों A2 नू सबट्रैक्ट करांगे यानी कि 3√2 माइनस 2√2 ये भी 3 चों 2 घटा के 1 नाल √2 सो सिंपल √2 भी लिख सकते हो। अगे D3 आएगा A4 दे विचों A3 नू सबट्रैक्ट करके यानी कि 4√2 माइनस 3√2 सो ये भी अपने को √2 होएगा। हर बार डिफरेंस आ रहा है अपने को सेम तो यह एक AP है। सो यस एन AP ते D आ रहा अपने को √2। हाँ जी, हुण लिखनिया ने अगलियां 3 टर्म्स यानी कि A7 यानी कि A5। हाँ जी, A5 बनेगा ये √2 ऐड करके 4√2 दे विच D की वैल्यू यानी कि √2 ऐड की तो यह बन गया 5√2। अगे A6 लिख लैंदे आ। A6 ये A5 की वैल्यू दे विच √2 ऐड करके मिल जाएगा 6√2 ते A7 है जिहड़ा ओहो इस दे विच 6√2 दे विच √2 ऐड करके 7√2 बन जाएगा क्योंकि यह हुंदा 1√2 6 ते 1 बन जाएंगे 7 इस तरह। हाँ जी, अगे आने 13th पार्ट ते अपने कोल D1 की निकालते हैं वैल्यू √6 माइनस √3। हाँ जी, जो √6 है उन्होंने आपां √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। पिछे है √3 दोनों च √3 पे है √3 करते हैं कॉमन तो अंदर रह जाएगा √2 माइनस। हाँ जी, ये बाहर चला गया यदि जगह रहेगा अंदर 1। हुण आपां D2 की वैल्यू निकालते हैं जो कि होएगी दिस माइनस दिस √9 माइनस √6 इनू लिखा जा सकता है √3 इंटू √3 माइनस इनू लिखा जा सकता है √2 इंटू √3। दोनों चों √3 कॉमन कर लिए तो अपने को बचेगा अंदर √3 माइनस √2 जो कि पिछली दे नाल सेम नहीं है सो नॉट एन AP। यह AP नहीं हो सकती। अगे आने 14th क्वेश्चन ते पहला इन्हां दे स्केयर ओपन कर लेने 1 9 25 49। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि इन्हां च डिफरेंस सेम नहीं होएगा। वैसे फॉर्मैलिटी लिए कर लेने D1 आएगा 9 माइनस 1 करके 8 D2 आएगा 25 चों 9 नू सबट्रैक्ट करांगे आएगा 16। ओके, दीज आर नॉट सेम सो नॉट एन AP यानी कि AP नहीं है, नॉट एन AP। नैक्सट इन्हां दे भी स्केयर ओपन कर लेने 1 25 49 7 का स्केयर। अगे तो 73 बिना किसी स्केयर या पावर तो दिता होया सी। हाँ जी, हुण निकालते हैं D1 यानी कि 25 चों 1 नू घटाना है आपां आ गया 24। D2 निकालते हैं D2 है 49 दे विचों आपां 25 नू सबट्रैक्ट करांगे अगेन 24 आ गया। अगे निकालते हैं D3 जो कि होएगा 73 माइनस 49। हाँ जी, इन्हों सबट्रैक्ट करांगे तो इस बार भी आ रहा है 24। सो डिफरेंस हर बार सेम है इसलिए यह AP होएगी। यस एन AP एंड D यानी कि कॉमन डिफरेंस वो हो जाएगा 24 क्योंकि हर बार 24 आ रहा सी। अगलियां 3 टर्म्स लिखनिया ने A4 तक हैगियां ने A5 लिखनी है तो 73 दे विच D की वैल्यू 24 नू ऐड करांगे। हाँ जी, ये बन जाएगा अपने कोल 97। फिर A6 दे लई 97 दे विच D की वैल्यू 24 नू करांगे ऐड 121 बन जाएगा। A7 दे लई इस दे विच पिछली वैल्यू दे विच 24 नू ऐड करांगे ये बन जाएगा अपने कोल 145। सो इस तरह अगलियां 3 टर्म्स ये आ गई तो D आ गया सी अपना 24। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल ही एक्सरसाइज 5.1 हुंदी है कंप्लीट। मैनूं उम्मीद है जो अज आपां सारे क्वेश्चंस कीते ने तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होई तो तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच जाके पुछ सकदे हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करो। तुहाडे लाइक्स दे नाल सानूं होर वधिया काम करन दी मोटिवेशन मिलदी है ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल भी इसनूं शेयर करना ना भुलना। ते वीडियो नूं लास्ट तक देखण लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।